I hope you are enjoying online lectures. In the last session, we have seen Gatterman coach reaction, which is most important reaction. I expect and I hope you have watched throughout the slides and solved the mini example with the help of the general example of the Gatterman coach reaction. Today's session, we will discuss preparation of aromatic ketones from hydrocarbons, then preparation of aldehydes only from esters, then preparation of carboxylic acids, first part from nitriles and amides, from acyl chloride and anhydrides, and last from ester acid hydrolysis of ester, and B part will be alkaline hydrolysis of ester. These four reaction we will discuss thoroughly. So let's start from the preparation of aromatic ketones from hydrocarbons. Correct? Preparation of aromatic ketones from hydrocarbons. Here, aromatic ketones prepared by hydrocarbon by using Friedel-Crafts acylation of origins. And this part we have learned in the previous year. On screen, all the details are given, like refer to section 12.4.2a second and standard 11th chemistry textbook chapter 15 section 15.4.6 15.4.6 Friedel Craft acylation of orange. It is a very simple reaction. In short, when benzene react with the acetyl chloride in presence of anhydrous aluminum trichloride, it gives the aromatic ketones. Okay, a thoroughly part given on section 12.4.2 that we have learned in the previous slide also. So kindly watch the previous video, then and then you will get the ideas how the aromatic ketones prepared from Friedel-Crafts acylation. Let's see the next topic, that is it is important, preparation of aldehydes only from esters. Correct? Here we have to prepare aldehyde using esters. Before preparation of aldehyde, we have to know the how to make the esters. Yeah, what is the structure of esters? Esters that having uh, two oxygen directly attached with the carbon atom. That part we are learn in the 11th class in the functional group topics. Aliphatic or aromatic esters are reduced to aldehyde by using diisobutyl aluminum hydride. In short, DIB means diisobutyl aluminum hydride. In short, we have to write DIBAL hyphen a dash hydrogen. That means diisobutyl aluminum hydride. Or you can write by this way: aluminum hydride in bracket isobutyl bracket out of the bracket is 2.
Okay, keeping in mind these three forms of diisobutyl aluminum hydride. The reaction is usually carried out at 195 Kelvin to prevent further reduction of the aldehyde produced. So let's see the textual reaction. How to prepare the first ester. This is the general formula of ester. This carbon having oxygen, again second oxygen, means this carbon having two oxygen. Yeah, you can say this carbon having one oxygen with one OR dash. That is called as a ester. When this ester react with diisobutyl aluminum hydride, okay, diisobutyl aluminum hydride in, with hydrolysis H3O plus. This is what? H3O plus. This part is plus, means hydrolysis. It gives a aldehyde. Clear? How actually this aldehyde form by this reaction? See here, dear friends. Ester simply hydrolysis. Simply hydrolysis means what? Hydrolysis means addition of water. Correct? So here this water directly approach toward the कार्बन, या यू कैन से, अगर सपोज इसको हम लोग ऐसे कंसिडर कर दे, चलो आपको समझ में आ जाए उसके हिसाब से कर दे, ये वाटर हुआ, दिस पार्ट इज नेगेटिव एंड दिस पार्ट इज अ पॉजिटिव. Okay, OH acquire negative charge and hydrogen acquire what? H plus charge. Okay, it is simple reaction. Sorry. Here, this part, this oxygen having extra lone pair of electron has this part approach towards the hydrogens. And once the oxygen donated the electron to the hydrogen, bond between the OH and hydrogen break, and then oxygen acquire positive charge. After that, a bond between the carbon and oxygen break like this way. Then you will form ROH, means alcohol. Okay, and carbon bearing here now positive charge on it. Okay, then this diisobutylated hydrogen play the important role here. This hydrogen part directly approach toward the carbon, and then you will get the aldehyde. Clear? फिर से एक बार समझ लेते हैं कि ये जो ईस्टर है, ईस्टर का जब अगर आप लोग इन प्रेजेंस ऑफ डाइसोब्यूटाइल एल्यूमिन हाइड्रोलिसिस करोगे तो इतना पार्ट ब्रेक हो जाएगा और ये क्या होगा, इधर आर ओ एच मिलेगा एंड अल्कोहल मिलेगा. कहने का मतलब क्या है, अल्कोहल मिलेगा और इसके ऊपर हाइड्रोजन अटैक करेगा इस पार्ट के ऊपर, तो आपको इतना पार्ट मिलेगा. इतना पार्ट क्या हुआ, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच मीन्स अल्डिहाइड. आप लोग सिंपली ऐसा लिख सकते हैं. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट पार्ट इज प्रिपरेशन ऑफ carboxylic acids.
correct? Before that, we have seen the preparation of aldehyde, then preparation of ketone, okay? Then preparation of aromatic aldehyde, aromatic ketone. Let's see the next topic, that is preparation of carboxylic acid. First reaction from nitriles and amides. Nitriles means C triple bond N, and amide means C double bond O NH2. This is the functional group of nitriles and amides. The statement of this reaction is alkyl nitriles or aryl nitriles. Correct? Alkyl nitriles means aliphatic and aryl nitriles means aromatic. On acid hydrolysis gives amides. Then amides on further acid hydrolysis gives carboxylic acids. Hydrolysis is carried out by using dilute mineral acids like dilute sulfuric acid और dilute हाइड्रोक्लोरिक एसिड. यानी क्या है इस रिएक्शन में कि आप लोगों ने सपोज आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन लिया, मीन्स नाइट्राइल लिया, इसका हाइड्रोलिसिस किया. हाइड्रोलिसिस मीन्स सिंपली एडिशन ऑफ वाटर. जैसे ही आप लोग हाइड्रोलिसिस करोगे तो जो दो बॉन्ड है कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड है, ये जो हाइड्रोलिसिस होगा तो जो 2 बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएंगे और OH डायरेक्टली अटैक करेगा किसके ऊपर? कार्बन के ऊपर. और जैसे ही कार्बन के ऊपर OH अटैक करेगा तो NH3 का गैस फॉर्म में कन्वर्ट होके और रिलीज होगा. लेट्स सी द रिएक्शन. ये आपका नाइट्राइल है, ठीक से देख लो नाइट्राइल का स्ट्रक्चर. इसमें क्या है? R for alkyl group, C triple bond N means nitrile, and we know that nitrogen having the extra lone pair of electrons, means nitrogen having tendency to donate the electrons. जिसके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता अपने पास रखते हैं. ओके, देखते हैं. इसमें हमने वाटर डाला मीन्स हाइड्रोलिसिस किया. हाइड्रोलिसिस मीन्स एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. क्लियर? इतना शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा. ओके, तो क्या होने वाला है कि जैसे आप लोग वाटर डालोगे तो क्या हो सकता है? देखो आपको मैं बोलता हूं, ये OH और ये हुआ आपका H. This H acquire having positive charge and OH having what? Negative charge. This negative having tendency to donate the electron and hydrogen having tendency to accept the electrons. Clear? अभी ये नाइट्रोजन क्या करेगा? ये हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे देगा और फिर ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इसके इलेक्ट्रॉन OH के ऊपर चले जाएंगे और ये कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे देगा और ये पाई इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगी. देखो कैसे एक एक इलेक्ट्रॉन जैसे शिफ्ट हो रहे, एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के ऊपर शिफ्ट होते जा रहे. थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है? फिर से एक बार देखते करके कि क्या चल रहा है इधर. आपको मैंने बोला कि नाइट्रोजन के पास एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और हमें सिंपली क्या करना है? हाइड्रोलिसिस करना है. मैं क्या करता हूँ? हाइड्रोलिसिस को थोड़ा डिसोसिएट कर देता हूँ वाटर को. ओके, चलो इसको मैंने डिसोसिएट किया है. ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज आएगा हाइड्रोजन के ऊपर और नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर आएगा? OH के ऊपर आ जाएगा चार्ज. अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के ऊपर शिफ्ट होंगे तो नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव, बराबर है. और कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव. तो सिंपली लॉजिक के हिसाब से नेगेटिव पॉजिटिव के ऊपर अटैक करेगा
बराबर ऐसा। अभी जैसे ही इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए उसके हिसाब से देखो इसकी अरेंजमेंट आ रही है क्या, आर एज इट इज, सिंगल बॉन्ड कार्बन के बीच में एज इट इज। देखो ये OH का बॉन्ड कार्बन के ऊपर अटैक किया है, ये OH, तो इस स्ट्रक्चर में OH आ गया, दिख रहा है, OH आ गया। कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड थे, एक बॉन्ड ने इलेक्ट्रॉन दे दिए नाइट्रोजन को, तो 2 बॉन्ड रहे, ये स्ट्रक्चर मिला आपको, इमाइड का स्ट्रक्चर, इमाइड बोलते हैं इसको। अभी इधर से रिवर्सिबल होता है क्योंकि ये स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट में कैसे कन्वर्ट होता है देखो मैं बता देता हूं आपको। ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन हैविंग एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सबको मालूम है। ये क्या करेगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देगा, किसको देगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है उसको इलेक्ट्रॉन दे देगा। ये पाई इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। ओके, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा और वो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देगा, तभी जाके वो ऑक्सीजन कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। ओके, तो आपको जैसे ही इधर अरेंजमेंट दिख रहा है उसके हिसाब से नेक्स्ट स्ट्रक्चर आ रहा है क्या, चेक करो। आर सी, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में OH। ओके, और ये हाइड्रोजन ले लेता है, जैसे इधर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देता है, तो इसमें देखो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड था, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर से ट्रांसफर हुए, पा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए, तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में एक ही बॉन्ड रहा। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन तो ऑलरेडी है, उसने एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दिया तो NH2 हो गया। इसको आप लोग बोलते हैं अमाइड। बराबर है। अभी भी हमारा कंप्लीट प्रिपरेशन नहीं हुआ है क्योंकि हमें क्या चाहिए, कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए। किससे चाहिए, नाइट्राइल एंड अमाइड से। अभी आपको तो दिख रहा है कि हमने नाइट्राइल का कन्वर्शन अमाइड में कर दिया है। नाइट्राइल का कन्वर्शन किस में हो गया है अभी, अमाइड में हो गया है। अभी फर्दर हाइड्रोलिसिस मींस व्हाट, इसमें फिर से वाटर डालेंगे इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl। दिस इज मिनरल एसिड एक्चुअली। मिनरल एसिड मींस क्या, वाटर में एसिड आना थोड़ा सा, इट इज कॉल्ड मिनरल एसिड। अब फिर से वही होगा, ये जो OH है देखो फिर से कैसे करोगे आप, ये OH और ये H आ गया, ये नाइट्रोजन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए, ये इसको दे देगा, दिया, ये दी कब देगा, जब ये इसको इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा इधर, तो यानी बॉन्ड ब्रेक हुआ, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड ब्रेक हुआ। जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होगा तो कार्बन की वैलेंसी 3 हो जाएगी, तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, बराबर है। तो ये जो नेगेटिव पार्ट है वो क्या करेगा, कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, तो आपको क्या मिलेगा, RCOOH, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। और NH2 का इधर एक हाइड्रोजन लिया तो क्या हुआ, ये NH3। आया समझ में, ये गैसियस फॉर्म में और ये रिलीज हो जाएगा गैसियस फॉर्म में। समझ में आ रहा है, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, क्लियर। व्हेन hydrolysis of nitrile take place, a imide form, and after rearrangement it gives the amide. Further hydrolysis on amide in presence of dilute acid, it gives the carboxylic acid and liberation of ammonia gas. क्लियर। एक जनरल एग्जांपल देखते हैं फिर से आपकी किताब का, वही है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं। देखो इसमें दिया पहला वाले रिएक्शन में देखो, ये एक वाटर और ये दूसरा वाटर और मिनरल एसिड, बराबर, इधर ट्वाइस वाटर आ गया और इधर डाइल्यूट HCl आ गया, और ये वही है, खाली शॉर्ट फॉर्म में आ गया, तो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अमोनिया NH4Cl मिल गया। इसमें NH4Cl भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आया समझ में, वही रिएक्शन है, बस शॉर्टकट में लिखा है कि ट्वाइस ऑफ H2O प्लस डाइल्यूट HCl है तो एसिड मिलेगा प्लस अमोनियम क्लोराइड। तो ये आपको समझ में आ चुकी होगी रिएक्शन, अगर नहीं समझ में आ गए तो फिर से 1-2 बार ये वीडियो देखो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा।
बहुत इजी है। नाइट्राइल का आप फर्दर हाइड्रोलिसिस करोगे इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl तो कार्बोक्सिलिक एसिड आपको इजीली मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे का रिएक्शन है फ्रॉम असिल क्लोराइड एंड अनहाइड्राइड। क्या बना बना रहे हैं हम लोग? प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बाय यूजिंग फ्रॉम असिल क्लोराइड एंड अनहाइड्राइड। तो पहला देख लेते हैं असिल क्लोराइड का। Acyl chloride on hydrolysis with water gives carboxylic acid. This method is useful for the preparation of aliphatic as well as aromatic acid. बराबर है। अब ये असील क्लोराइड का स्ट्रक्चर तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, तब जाके आपको उस पे हाइड्रोलिसिस करोगे। हाइड्रोलिसिस करने के बाद ही आपको जो बनाना है, देखो इसमें तो आपको एलिफेटिक भी मिल सकता है, एरोमेटिक एसिड भी मिल सकता है, जो चाहे वो बना सकते। रिएक्शन देख लेते हैं। ये हुआ असिल क्लोराइड का स्ट्रक्चर। ओके, चलो क्या हुआ है इसमें? असिल क्लोराइड, ये वाला असिल क्लोराइड, इसका हाइड्रोलिसिस करना है, सिंपली एडिशन ऑफ वाटर। फिर से वही करना है। देखो मैंने क्या बोला था कि चलो ये आर ये हुआ आपका असिल क्लोराइड, ये ऑक्सीजन और ये Cl। ओके, इसमें आप लोग क्या डालोगे? हाइड्रोलिसिस करेंगे इसमें। हाँ, आपको मालूम है हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। ओके, ये जो पार्ट है वो इसके ऊपर अटैक करेगा, ये निकल जाएगा और ये किसको इलेक्ट्रॉन देगा? हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देगा। देखते हैं क्या मिलेगा आपको प्रोडक्ट में। देखो जो अभी इधर दिख रहा है वैसे ही आया। हम्म, देखो अभी ये देखो आर एज इट इज, ये बॉन्ड भी एज इट इज, सी डबल बॉन्ड भी एज इट इज है। ओके, इधर क्या अटैच हुआ है? ये वाला ओ एच अटैच हुआ है इधर। ओके, तो ये ओ एच प्लस वॉट HCl आया, जैसे इधर दिया है उसके हिसाब से ये आया है। बराबर है। ये बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। असिल क्लोराइड का आप लोग हाइड्रोलिसिस करोगे तो सिंपली आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। क्लियर? इसमें कुछ डिफिकल्टी नहीं है। अभी ये तो एसिल क्लोराइड से बना। अब देखते हैं नेक्स्ट विथ अनहाइड्राइड। तो अनहाइड्राइड को भी आप लोग इसका हाइड्रोलिसिस करोगे विथ वाटर गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड। इससे पहले हमें अनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ये हुआ उसका स्ट्रक्चर अनहाइड्राइड का। अभी अनहाइड्राइड में आप लोग फिर से वो हाइड्रोलिसिस करोगे, फिर से वही। बराबर है। इससे आज एक कंसेप्ट क्लियर कर लो। बहुत सारे हम लोगों ने आज हाइड्रोलिसिस का देखा रिएक्शन। हाइड्रोलिसिस मींस एडिशन ऑफ वाटर। सिंपली ये पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा, ये नेगेटिव चार्ज इधर आएगा। अब ये किधर अटैक कर सकता है? जिधर पॉजिटिव चार्ज के ज्यादा चांसेस है, इधर पॉजिटिव हो सकता है, इधर नेगेटिव हो सकता है, इधर पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है। बराबर है। तो नेगेटिव पार्ट जो रहेगा वो पॉजिटिव के ऊपर अटैक करेगा और ये जो रहेगा ये इधर अटैक करेगा। इसका मतलब है इधर शिफ्ट होगा। तो आपको क्या मिलता है? टॉइस ऑफ RCOH, अगर टॉइस ऑफ लिया है तो। बराबर है। आगे बढ़ते। फिर से समझ लो। अनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर ये होता है RC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड OR प्लस ट्वाइस ऑफ वाटर। बराबर। तो आपका ये देखो इधर वाटर गया है तो ये एक हुआ, ये RC डबल बॉन्ड OOH। बराबर है एक, और इसको ये वो ऑक्सीजन फिर हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देगा तो RC डबल बॉन्ड OH। बराबर है, इट इज ट्वाइस ऑफ RCOH मीन्स ट्वाइस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। है ना? बहुत इजी है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। एसिडिक अनहाइड्रेट अनहाइड्रेट से हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं बाय हाइड्रोलिसिस मेथड। बराबर है। ये ध्यान में रखो, बहुत इजी मेथड है, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। ओके, चलो आगे का देखते हैं। फ्रॉम ईस्टर्स, जो हमने पहले भी देखा था, पर ईस्टर्स में हमने क्या दूसरा देख लिया था। अभी ईस्टर से हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहे हैं ना,
The carboxylic acid can be obtained from esters either by acid hydrolysis or alkaline hydrolysis. अभी acid hydrolysis means what? Means H3O plus. उसको आप लोग बोल सकते हैं एसिड हाइड्रोलिसिस। मीन्स वाटर में आप लोग डायलूट HCl डालोगे तो वो हो जाएगा एसिड हाइड्रोलिसिस। ओके, और अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस मीन्स व्हाट? तो वाटर में आप लोग NaOH डाल दोगे तो हो जाएगा वो अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। तो पहला देखते हैं एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। ईस्टर जो हमने पहले भी स्ट्रक्चर देखा है, RC डबल बॉन्ड OOR। ईस्टर ऑन हाइड्रोलिसिस विद डाइल्यूट मिनरल एसिड लाइक डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट H2S सुपर, दोनों में से कौन सा भी चलेगा, एक गिव्स द करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। ये ईस्टर का फॉर्मूला आ गया आपके सामने। अगर ये ईस्टर में आप लोग वाटर डालोगे, अभी इससे अभी आप लोग लॉजिक लगा सकते हैं कि फिर से ये वाटर है, OH माइनस और H प्लस, दिस OH will approach toward the carbonyl carbon, okay, and the carbon oxygen bond will be break, means the bond electron between the carbon and oxygen shifted towards the oxygen, correct, it gives the acid plus alcohol। देखते हैं एसिड मिलेगा प्लस अल्कोहल मिला, आया समझ में? इधर से देखो ये जो OH है ये कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, OH, ये आप लोग हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं ना, ये OH इधर और ये H, आया समझ में? तो ये पार्ट हो गया आपका अल्कोहल और ये पार्ट हो गया आपका acid। Very simple reaction. When ester hydrolysis with dilute mineral acid like dilute HCl or dilute H2SO4 gives carboxylic acid and alcohol। Last reaction देखते हैं, alkaline hydrolysis of ester using dilute alkali like dilute NaOH or dilute KOH forms solution of water soluble sodium or potassium salt of the acid। इसको आप लोग कार्बोक्सिलेट भी बोल सकते हैं। ऑन एसिडिफिकेशन विद कॉन्सेंट्रेटेड HCl फ्री एसिड इज फॉर्म। ओके, अभी ये देखो ये भी ईस्टर का स्ट्रक्चर है पर नाम देखो क्या है अभी, मिथाइल प्रोपेनॉइड अकॉर्डिंग IUPAC सिस्टम। ओके, ये आपका हुआ मिथाइल पार्ट, और इतना पार्ट देखो कितने कार्बन है, 1 और इधर 2 है, टोटल 3 है, सीरीज प्रोपेन, और ये पार्ट को OH लगाया जाता है ये वाला, क्योंकि ये ईस्टर है ना तो उसका सफिक्स चेंज किया जाता है। अल्केन का ANE रिप्लेस बाय OATE, hence the name of the structure according IUPAC is methyl propanoate। Okay, when this methyl propanoate react with dilute NaOH, the resulting product is sodium propanoate। How? देखते कैसे, अभी थोड़ा इसको मैं मिटा देता हूँ जो काम किया है, ये NaOH है, इसका मैं थोड़ा डिसोसिएट कर लेता हूँ, NaO और H, ए प्लस। ओके, क्लियर इतना? ये नेगेटिव पार्ट, अगर लॉजिक लगाओगे तो ये इधर पॉजिटिव आएगा और ये नेगेटिव आएगा, ऑक्सीजन है तो ये डायरेक्ट इधर अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर ब्रेक हो जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर जाएगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को देगा, यानी इधर से ये इतना पार्ट ब्रेक हो जाएगा, तो आपको क्या मिलता है, सोडियम प्रोपेनोएट प्लस इतना जो है बाकी का अल्कोहल। क्लियर समझ में? सोडियम प्रोपेनोएट मीन्स सोडियम आया जो इधर था ये वाला ओ, और कार्बन को O लगा हुआ है सिरप, और C2H5 है सोडियम प्रोपेनोएट प्लस मिथेनॉल। तो इधर भी हमें कुछ मिला नहीं, हमारा टारगेट है प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, अभी हमें सोडियम प्रोपेनोएट मिला है, बराबर। अगर इस सोडियम प्रोपेनोएट को हम लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे, इस सोडियम प्रोपेनोएट को अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे तो फिर से वही हुआ ना, HO और AH, ये आपको पता है H प्लस, ये आपको पता है नेगेटिव, ये इतना पार्ट और ये इतना पार्ट,
अगर देखोगे ये इतना इसके साथ, तो आपको एसिड मिला, सी डबल बॉन्ड ओ एच। देखो मिला, प्रोपेनोइक एसिड प्लस NaOH, बराबर। सोडियम हो, अभी इसकी जगह पे आप लोग NaOH लिया है ना, तो इसकी जगह पे आप लोग KOH भी ले सकते हैं। तो द सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड्स आर नोन एज अ सोप। तो ये आपका क्या हुआ, सोप। ये सोप हुआ है। ओके, तो सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड आर known as a soap. Hence, alkaline hydrolysis of ester is called as a saponification. तो इस प्रोसेस को आप लोग है ना सैपोनिफिकेशन भी बोलते हैं, इतना ध्यान में रखो। ये स्टैंडर्ड 11 का केमिस्ट्री की टेक्स्ट बुक में भी ये चैप्टर नंबर 16 में, बराबर। कभी कभार सपोज सैपोनिफिकेशन पूछा जाएगा, तब भी ध्यान में रखना है कि व्हाट इज मीन सैपोनिफिकेशन। द सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ हायर फैटी एसिड्स आर नोन एज सोप। Hence, alkaline hydrolysis of ester is called as a saponification. ओके, इधर आज का हमारा ये जो कंटेंट है हम डिस्कस किया, वो इधर खत्म हो रहा है। तो हमने क्या क्या देखा वो फिर से एक बार रिकैप कर दे। प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक कीटोन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, प्राइडल का रिएक्शन जो पढ़ा है हम लोगों ने इससे पहले भी। देन प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड ओनली फ्रॉम ईस्टर, इसमें ही खाली हम लोगों ने अल्डिहाइड देखा है, वो भी ईस्टर से। ईस्टर का हम लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तब जाके आपको क्या मिलने वाला है, अल्डिहाइड। बाद में हम लोगों ने देखा प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड अमाइड्स। तो नाइट्राइल का कन्वर्शन हम लोगों ने अमाइड में किया, पहले इमाइड हुआ, इमाइड में रीअरेंजमेंट करने के बाद अमाइड मिला हमें, अमाइड के बाद हम लोगों ने H2O डाइल्यूट HCl किया, उसके बाद हमें क्या मिला, कार्बोक्सिलिक एसिड मिला। ये सिंपल रिएक्शन है उसका। उसके बाद हम लोगों ने देखा फ्रॉम असिल क्लोराइड और अनहाइड्राइड से कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनाते हैं। असिल क्लोराइड को हमने हाइड्रोलिसिस किया, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। अनहाइड्राइड का भी हम लोगों ने हाइड्रोलिसिस किया, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। ओके, तो लास्ट हमने देखा फ्रॉम ईस्टर एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर भी देखा। ईस्टर में हम लोगों ने वाटर डाला इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एस्टर, तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। ओके, उसके बाद हम लोगों ने अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस देखा, जिसमें डाइल्यूट NaOH डाला गया, और फिर आपको सोडियम प्रोपियोनेट मिल गया, मीन्स हायर मेंबर ऑफ फैटी एसिड। देन वो जो सोडियम प्रोपेनॉट है उसमें हाइड्रोलिसिस किया गया इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl, तो आपको हायर मेंबर ऑफ फैटी एसिड मिला, दैट इज प्रोपेनोइक एसिड, NaOH भी मिला। द सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट, इसको देखो ये इसको क्या बोलते हैं आप लोग, सोप बोलते हैं। ये हुआ आपका सोप। ओके, the sodium or potassium salt of higher fatty acid are known as a soap. Hence, alkaline hydrolysis of ester is called as a saponification. Clear? Okay, friends. I hope you understand well. If you don't understand, watch video 2 and 3 times, and still if you have any doubt regarding the same, you can raise, yeah, you can ask the question on the Google Classroom. Okay. Thank you being with us and watch the video always up to end. Okay. Thank you. Bye bye.